Welcome students. In the last video of class 9th, we did question number 4 and 5 of chapter quadrilateral of exercise 8.1. So today in this video we will start from question number 6. So what is question number 6? Question number 6 is diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A. ABCD parallelogram है and this diagonal of parallelogram ABCD is bisecting angle A. It means this angle is equal to this. Means either you give name 1 or 2, it means angle 1 is equal to 2, or you write actual name that angle DAC is equal to angle BAC. So पहले यही लिख देते हैं. First we will write what is given. What is given in the question that ABCD is a parallelogram. So you can apply all the properties of parallelogram. And one more thing, that angle DAC is equal to angle BAC. Fine. अब हम आते हैं what we have to prove. There are total 2 parts, students. First is that we have to prove that AC. It means AC diagonal bisects angle C also. Means this we have to prove that this angle is equal to this. So again, either you give name or write actual name DCA. Angle DCA is equal to angle BCA. ये हमें प्रूव करना है, ये हमें given है. What happens, students, if we will write clearly that what is given and what we have to prove, and after that if we will start the solution, so it will be easier for us. हमारे लिए easy हो जाएगा अगर हम पहले से ही clearly लिख लेंगे, statements के according अगर हम पहले ही लिख लें कि प्रॉपरली के क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए सॉल्यूशन. ठीक है, तो अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे. सो प्रूविंग दीज टू एंगल्स इक्वल टू ईच अदर. क्लियर है कि हमें ये 2 ट्राइंगल्स लेने होंगे और इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा. देन वी कैन यूज CPCT फॉर दीज 2 एंगल्स. सो सेम दीज 2 ट्राइंगल्स वी विल टेक विच, सो इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC हम ये 2 ट्राइंगल ले लेते हैं. दीज 2 आर देयर ओनली एंड दीज 2 एंगल्स आर द पार्ट ऑफ दीज ट्राइंगल्स. तो इस फिगर में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं प्रीवियस फिगर्स की तरह. सो स्टार्ट. ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की, वी नो ऑलरेडी एंड आई वाज टेलिंग यू दैट यू कैन अप्लाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, so we can take anything which are the properties of parallelogram and which is given. उनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं, but एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि which things you are taking equal to each other, these things should be fit in the criteria of congruency. इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं, जैसे ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, एक एंगल इक्वल है, एक साइड कॉमन है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रुएंसी के जो 5 क्राइटेरियाज होते हैं उनमें फिट होना चाहिए वो. ठीक है, सो आई एम टेकिंग दीज 2 साइड्स इक्वल टू ईच अदर, दैट AD इज इक्वल टू BC, रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड AC इज इक्वल टू AC, रीजन कॉमन, and angle 1, or you can write what which we have written in the given, angle DAC is equal to angle BAC and the reason will be given. हमने given इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने given में यहाँ पे लिखा है इसको, otherwise we would have been write the statement. Fine. So what can we see? The sides and in between angle. So it means triangle ADC is congruent to triangle ABC by SAS criteria. Since these 2 triangles are congruent, therefore remaining corresponding parts are equal. So these parts, angle DCA is equal to angle BCA by CPCT. So first part proved. Fine. Now come to your second part. Second part में कहा है that we have to prove ABCD is a rhombus. अब rhombus में क्या है, that parallelogram opposite sides already equal होती हैं, बस rhombus में हम adjacent sides को equal अगर prove कर दें, so we can prove that ABCD is a rhombus. यही तो difference है.
ठीक है। सो हाउ टू प्रूव, ये दो ट्रायंगल हैं, इनसे हम ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल प्रूव कर सकते हैं और द ऑपोजिट साइड्स आर ऑलरेडी इक्वल। एडजेसेंट साइड्स इन दो ट्रायंगल से हम कॉन्ग्रुएंस, इन दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव नहीं कर सकते हैं। ओके, वी कैन नॉट प्रूव। सो हाउ टू प्रूव? इफ students, if you remember one property of triangle, that if opposite angles of a triangle are equal, sorry, if two angles of a triangle are equal, then their opposite sides are also equal. Remember, याद है कि अगर किसी ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल इक्वल हो, कोई भी दो, ठीक है, तो उनके जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो अगर हम इन दो एंगल्स को आपस में इक्वल प्रूव कर दें तो हम उनके ऑपोजिट साइड्स यानी कि ए बी और बी सी को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, एंड ए डी इक्वल टू सी डी वी कैन प्रूव इजीली, एंड वी हैव टू प्रूव ओनली एडजेसेंट साइड्स इक्वल बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर ऑलरेडी इक्वल। बहुत बोल दिया, ठीक है। तो हमें क्या मेन है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, उसके लिए हमें इन दोनों एंगल को प्रूव करना है। तो स्टार्ट करें, कैसे प्रूव करेंगे? हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑलरेडी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। सो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं है, पूरा एंगल है, पूरा एंगल सी के इक्वल है ऑलरेडी, एंड द रीजन इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट इट योरसेल्फ। सो इफ दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, इफ वी विल डू द हाफ ऑफ देम, दोनों को हम किससे डिवाइड करें, 2 से, तो वो भी इक्वल होंगे। तो ए का हाफ, इधर यू राइट दिस एंगल और यू राइट दिस एंगल, एक एंगल ए का हाफ, हाफ क्यों है, क्योंकि ये डायगोनल दोनों ही एंगल्स का बाइसेक्टर है। एक एंगल का बाइसेक्टर गिवन था, एंगल ए का बाइसेक्टर ये ए सी डायगोनल ऑलरेडी गिवन था, और एंगल सी का भी बाइसेक्टर है, ये हमने प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट में। समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो अब एंगल ए के बाइसेक्टर जब है, हमने यहाँ पे भी इसको 2 से डिवाइड कर दिया, बाइसेक्टर का मतलब यही होता है हाफ पार्ट बोथ आर इक्वल, तो हम या तो एंगल 1 लिख लें, एंगल 2 लिख लें, इट्स आवर विश, ठीक है। तो अगर मैं एंगल 2 लिख रही हूँ, सो आई विल राइट एंगल बी एस सी नेम, क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी एस सी। ऐसे ही एंगल सी के साथ कंडीशन है, या तो मैं इस एंगल का नेम लिख लूँ या इस एंगल का, दोनों ही सी के हाफ के इक्वल है। सो बिकॉज आई हैव टेकन दिस एंगल अर्लियर, so I will take now this one angle. Why? Because then we will work in triangle ABC. Fine. So BCA, ठीक है, हो गया। आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं that diagonal AC bisect angle A as well as angle C, ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं हम इन ट्राइंगल ABC। अब हम इसको ले आते हैं, इस चीज़ को हम कहाँ यूज़ करेंगे, ट्राइंगल ABC में यूज़ करेंगे। आप ये सोचिए तो है ही नहीं, बस ये वाला ट्राइंगल है, तो उसके ऑपोजिट दो एंगल्स इक्वल है। कौन से दो एंगल इक्वल है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA, दोनों इक्वल हमने प्रूव किए। सो अकॉर्डिंग टू दिस, इफ इन अ ट्राइंगल 2 एंगल्स आर इक्वल, देयर ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो एंगल BAC की ऑपोजिट साइड है BC, एंड BCA के ऑपोजिट साइड है AB, एंड अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट राइट एनीथिंग विदाउट द रीजन। व्हाट इज द रीजन हियर, पूरी लाइन लिखनी है आपको, दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है, समझ में आया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये हमने प्रूव कर दिया। फाइन, AB इज ऑलरेडी इक्वल टू CD, फाइन, एंड BC इज ऑलरेडी इक्वल टू AD, ये है। अगर हम इसको इक्वेशंस के अकॉर्डिंग करें, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, और इन दो का रीजन है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, वो हमने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, ऑपोजिट साइड्स, सॉरी एंगल्स नहीं, साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है। अब when we will compare these 3 equations, कंपेयर करिए, BC AB के इक्वल है, AB CD के इक्वल है, तो BC AB के भी इक्वल हो गया, उसके साथ CD भी आ गया, उसके साथ AD भी आ गया। कंपेयर करिए आप, BC इज इक्वल टू AB,
और ए बी किसके इक्वल है, सी डी, तो हम ए बी दोबारा तो नहीं लिखेंगे, इसके इक्वल ही लिख दीजिए सी डी। और बी सी के इक्वल है ए डी, तो बी सी को भी दोबारा नहीं लिखना, यहाँ लिख दीजिए ए डी। सो बाय दीज 3 इक्वेशंस you write here by equation first, second and third all 4 sides are equal to each other, hence therefore since these all 4 sides are equal to each other, therefore A B C D is a rhombus, hence proved. Fine, I hope the solution is clear to you. बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया है कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ा सा टफ लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन इतना टफ होता नहीं है। आई रिमेंबर माई टीचिंग दैट वन स्टूडेंट यूज टू से मी, मैम आप तो ABC पढ़ा रहे हैं, बट दीज आर नॉट ABC, दीज आर द एंगल्स नेम। ओके, तो आप बस ऐसे समझिए जैसे आप खेल रहे हैं, एंगल से खेल रहे हैं, साइड से खेल रहे हैं, इनके नेम से खेल रहे हैं। तो हमें कहाँ से क्या चीज़ लानी है, बस आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले ही लॉजिक लगाना है कि किस फिगर्स में हम वर्क करें कि अपने टारगेट तक जा सकें, अपने जो हमें प्रूव करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मेन कि सबका रीज़न ज़रूर लिखना है आपको ज्योमेट्री में। इन द ज्योमेट्री यू कैन नॉट राइटिंग एनीथिंग जस्ट बाय वॉचिंग एंड विच यू आर थिंकिंग, ऐसे नहीं लिख सकते, या तो उसका रीज़न क्वेश्चन में होना चाहिए या वो कुछ किसी प्रॉपर्टी से होना चाहिए। फाइन, so students now let's start question number 7. Question number 7 is ABCD is a rhombus. Wow, we can apply all the properties of rhombus in this figure. What we have to prove, so what we will write in the given, you can write properties according to the properties that this is rhombus. Either you write a complete statement that ABCD is a rhombus, और अगर आपको प्रूफ में और easily यूज करना है, so you can write according to the properties that OA is equal to OC, OB is equal to OD and these all angles are 90 degree because AB rhombus diagonals are perpendicular bisector, तो bisect भी होते हैं और perpendicular bisector होते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल हो गए। Now the main thing is what you have to prove, कितना सारा कुछ प्रूव करना है इसमें, उससे घबराइएगा मत, जितना सारा भी प्रूव करना है वो बहुत इजी है। क्या प्रूव करना है, दैट शो दैट डायगोनल AC, पहले डायगोनल AC पे आते हैं। शो करना है हमें, वी हैव टू प्रूव दैट दिस डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। अगेन आई एम रिपीटिंग, ईदर यू राइट एक्चुअल नेम DAC इज इक्वल टू BAC और you give name, but remember if you are giving the name according to you to the angles, so it's mandatory that you draw your figure in the answer sheet and show that which name you are giving to the angles according to you. अगर एग्जामिनर को पता नहीं होगा आपने यहाँ जो एंगल 1 और एंगल 2 लिखा है वो कौन सा एंगल है, तो वो कैसे चेक करेगा, ठीक है। तो मैंने नेम दे दिए हैं that we have to prove angle 1 equal to angle 2, और बहुत सारा है मैंने बताया था, as well as angle C, तो यहाँ भी प्रूव करना है that angle 3 is equal to angle 4। दूसरा आते हैं डायगोनल BD भी लेना है और उसको भी दोनों साइड से प्रूव करना है that it bisects angle B also and it bisects angle D also. It means again I am giving name that angle 5 is equal to angle 6 and angle 7 is equal to angle 8. Fine. अब घबराना नहीं है कि हमें तो बहुत सारा कुछ प्रूव करना है, नहीं, बहुत ही छोटा सॉल्यूशन है और बहुत इजी सॉल्यूशन है। हाउ प्रूफ, कंप्लीट प्रूफ आई विल नॉट डू इट, I will explain you like I same I did in my previous video. One question I'll explain completely, but the another solution which will be same as the previous one, not completely same, 50-60% same. This for this solution I will give chance to you. Then also if you are not able to prove, write in comment, I will surely prove it for you. Okay, so proof कैसे करना है, देखिए 4 ट्रायंगल्स हैं क्लियरली, तो मेन बात यहाँ आती है हम कौन सी 2 ट्रायंगल हैं उन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूव करें और कैसे हम अपने टारगेट पर पहुँचें। अगर हम ऑपोजिट ट्रायंगल्स लेते हैं तो हमें ऑपोजिट एंगल्स तो प्रूव नहीं करने, हमें एडजेसेंट एंगल आपस में इक्वल प्रूव करने हैं। ऑपोजिट एंगल तो आपको इक्वल प्रूव नहीं करने हैं, यू हैव टू प्रूव दैट एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। सारे एंगल जो आपको एक दूसरे के इक्वल प्रूव करने हैं, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, तो हम एडजेसेंट ट्रायंगल्स ही लेंगे।
तो इधर these two, कोई भी दो पेयर ले लीजिए, लेकिन वो एडजेसेंट होने चाहिए, ऑपोजिट नहीं। तो कौन से लें? मैं ये वाले दो ट्रायंगल ले लेती हूँ, COD एंड COB। सो इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल COB, ये दो ट्रायंगल मैंने ले लिए। नाउ प्रॉपर्टीज अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, जो हमें पहले से ही पता है। क्या? OD इज इक्वल टू OB, हमने पहले ही लिख लिया था यहाँ, ठीक है। OD इज इक्वल टू OB। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो ट्राइंगल आपने पहले यहाँ लिखा है, विच ट्राइंगल यू हैव रिटर्न, फर्स्ट पेज पे यानी कि राइट साइड लेफ्ट साइड पे उसी के ही आप पार्ट्स लिखेंगे, और लेफ्ट साइड पे आपने जो ट्राइंगल लिखा है, सॉरी राइट पे जो ट्राइंगल लिखा है राइट साइड पे उसके पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो OD इज इक्वल टू OB, देन OC कॉमन है दोनों में, OC इज इक्वल टू OC। Please don't forget to write reasons. This is already given in the question. Fine. Third thing is that these all angles are 90 degree each, और हम इन दो साइड के बीच का एंगल भी ले लेंगे। बहुत सी चीज़ें आप ले सकते हैं। I told you previously also that you can take these two sides also, but use according to your criteria. ठीक है? So angle DCO, हाँ, angle DOC is equal to angle BOC. एंड द रीजन इज 90 डिग्री ईच। प्रूव हो गया। और क्राइटेरिया क्या लगा? साइड साइड बीच में एंगल, तो SAS। सो ट्राइंगल COD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COB बाय SAS। सिंस these two triangles are congruent again, therefore remaining corresponding parts are equal, so we can write angle 3 is equal to angle 4 by CPCT. Now you are thinking that this type of solution, the big solution, you have to do for all the parts, even it means 3 times more. No, now you can write similarly. अब हम क्या लिख सकते हैं बस इसमें? ओहो, I was saying that I will not do the complete solution, और मैंने कर भी दिया, कोई नहीं। अब आपको बस similarly लिखना है। Similarly triangle BOC is congruent to BOA, it means 5 equal to 6. Similarly BOA congruent to AOD, 1 equal to 2. Similarly AOD congruent to DOC, 7 equal to 8. तो सबका सोल्यूशन आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट करिए क्वेश्चन। आई होप आई एम एबल टू explain you properly. So thank you, and the further questions we will do in the next video.